Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Now come to your lecture of mathematics. Chapter number 10, exercise 10a. We will discuss about the types of the angle. The types of the angle are right angle, acute angle, obtuse angle, reflex angle and straight angle. Now look at this. What is right angle? L-shape angle. The angle that is equal to 90 degree is called right angle. The angle which is greater than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. The angle which is greater than 90 degree is called obtuse angle. The angle which is greater than 180 degree is called reflex angle. And the angle which is equal to 180 degree is called straight angle. Now come to this, find complementary angle of following. जब भी हमें कहा जाएगा कि हमने किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री. जब भी हमें कहा जाएगा कि हमने किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है तो हम लोगों ने उसको क्या करना होता है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दी 90 माइनस 50. The sum of the complementary angle is 90 degree. To find the complementary angle of any angle, we have to subtract it from 90 degree. अगर हमने 50 का complementary angle find करना है, so we have to subtract it from 90 degree. 90 degree minus 50 degree is equal to 40 degree. Now come to this 70 degree. 90 degree minus 70 degree is equal to 20 degree. So to find the complementary angle, we have to subtract it from 90 because the sum of complementary angle is 90 degree. Now come to this. Find the supplementary angle of the following. The sum of the supplementary angle is equal to 180 degree. To find the supplementary angle of any angle, we have to subtract it from 180 degree. Look at this. To find the supplementary angle of 100 degree, we have to subtract it from 180 degree. 180 degree minus 100 degree is equal to 80 degree. To find the supplementary angle of 120, we have to subtract it from 180 degree. 180 degree minus 120 degree. The answer is 60 degree. So to find the supplementary angle of any angle, we have to subtract it from 180 degree, and to find the complementary angle of any angle, we have to subtract it from 90 degree. Now come to this, you have to find the value of x. Let's suppose this is a figure. Here the angle is 60 degree and this is x. So we have to find the value of x. जब भी हमारे पास ऐसी कोई भी डायग्राम आएगी तो हम लोगों ने इसको इस तरह से करना है. द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ राइट एंगल इज़ 180 डिग्री. अब आप देखो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है. द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री. तो आप देखो कि इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स हैं, 1 2. सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे, x डिग्री प्लस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. अगर एक स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल्स होंगे तो हम उन तीन का क्या कर देंगे, सम क्या किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के. इसी तरह आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दो एंगल्स हैं, x प्लस 60 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. टू फाइंड द x, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 60 फ्रॉम द 180 डिग्री. अब ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. The answer is 20 degree, 120 degree. So अगर आप देखो कि लेट्स सपोज ये एक फिगर है जिसमें यहाँ पर तीन एंगल्स हैं. यहाँ पर जिस तरह आप समझ लो
120 डिग्री है, यहाँ पर आप समझ लो 120 डिग्री है, और यहाँ पर कहा गया है कि आप y फाइंड करो। तो आप देखो यहाँ पर 3 एंगल्स एंड द सम ऑफ ऑल दीज 3 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दीज थ्री एंगल्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जितने भी एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं उनका सम किसके इक्वल आता है 180 डिग्री के। इसमें भी इसी तरह से हम लोग करेंगे 20 + 120 इज इक्वल टू 140 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो फिर हम y फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, y का आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो इसका क्या होता है कि जो भी एंगल, जितने मर्जी एंगल स्ट्रेट लाइन पे जब लाई करते हैं तो देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम उन सबका सम जो होता है वो 180 के इक्वल लिखते हैं, और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, और उसमें जो भी अल्फ़ाबेट जो भी हमसे पूछा होता है वो हम उसको फाइंड कर लेते हैं। नाउ कम टू दिस, इन दिस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। अगर आप लोग देखो कि आपके पास कोई भी एक फिगर है जिसमें सर्कल बन रहा है, द सम ऑफ एंगल्स इन अ पॉइंट और इन अ सर्कल इज़ 360 डिग्री। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी डायग्राम है, लेट्स सपोज अगर आपके पास इस तरह की एक डायग्राम है, ये जो है ये इक्वल है 120 डिग्री के, ये इक्वल है 20 डिग्री के, ये y है, ये 20 डिग्री है, और ये आप लगा लो 10 डिग्री है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखो पूरा एक सर्कल बन रहा है, तो सम ऑफ एंगल्स इन अ सर्कल इज़ 360 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सब का सम जो है वो इक्वल लिख देंगे, सारे एंगल लिख देंगे। 10 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस y प्लस 20 प्लस 120 इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे, 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 120। अब क्या होगा कि आप लोग देखो 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 120 170 प्लस y डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 360 माइनस 120 कर देंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमने इन सब क्वेश्चंस को करना है कि अगर एंगल स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, देयर सम इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर आप देख रहे हो कि एंगल्स में पूरा एक सर्कल बन रहा है, तो देयर सम इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, और उसके बाद हम लोग उसमें प्लस कर देंगे, और उसके बाद हम लोग उसकी जो भी उसमें हमसे वेरिएबल पूछा होगा वो हम फाइंड कर देंगे। I hope all of you understand this. Take care. Goodbye.